Good morning, girls. Good morning. Morning, ma'am. Good So morning, ma'am. we will continue the next lecture here. We had seen synapse, types of synapse. Now we are going to study central nervous system, which includes brain and spinal cord. Now see first about meninges. The covering of brain, it is called as meninge. There is a protective covering, inner to bony covering. Bony covering is skull, or we call it as cranium. There are three protective membranes called as meninges. They protect the brain and spinal cord. See here, different layers are shown. Pia mater, innermost layer, it is called as pia mater. Next to pia mater, that is outermost to the pia mater, is arachnoid matter, and then there is dura mater. You can see here dura mater. This is the part of the cranium and this is the part of the brain. So from if we will move from outer side towards the inner side, first is the dura mater, next is the arachnoid matter, and then it is pia mater. This membrane protect the brain and spinal cord. So in this diagram, you can see the different layers of the membranes of the brain. This blue color structure, it is called dura mater. Next, below to the dura mater is subdural space. Sub means below. Below to the dura mater, it is subdural space. Then arachnoid matter, subarachnoid matter, you can see here. Outermost non-vascular. Why it is called non-vascular? Because blood supply is not present there. That's why we use the term non-vascular, thick and fibrous meanings. Attached to the inner side of the cranium. Cranium, or it is called as bony box. Below it is subdural space filled with serous fluid. Arachnoid matter is the middle, thin and non-vascular layer. Dura mater is also non-vascular. Arachnoid matter is also non-vascular, made up of connective tissue having web-like appearance. It shows web-like appearance. Space filled with cerebrospinal fluid, that is CSF. The space between these meninges, that is dura mater, arachnoid matter and pia mater, it is filled with cerebrospinal fluid. You have to remember this term here. This is the skull cap. Next to the skull cap, it is epidural space. You can see here, epi means above. Above to the dura mater, it is epidural space. Then below the dura mater, it is subdural space. It is very easy to remember. See, above the dura mater is epidural space. Below the dura mater, there is subdural space. Then next to the dura mater, it is arachnoid matter. Below the arachnoid matter, there is subarachnoid space, and innermost membrane, it is called as pia mater. So this is filled with all these spaces, they are filled with cerebrospinal fluid. CSF or cerebrospinal fluid, it is lymph-like. We had seen lymph. Lymph does not contain blood vessel. It is white in color, extracellular fluid. सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, lymph like है, present inner to the subarachnoid space in the ventricles of the brain within the central canal of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के बीच में
सेंटर में सेंट्रल कैनल होता है, उसमें भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। meninges में भी cerebrospinal fluid present. It is secreted by pia mater, the choroid plexuses and ependymal cells. जब हम टीयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनल रहता है। ये अभी बाहर का पोर्शन है, इसके अंदर ये सेंट्रल कैनल है और इसके अंदर जो सेल्स है ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल्स. दे आर कॉल्ड एज एपेंडाइमल सेल्स. लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनल है, इसका लाइनिंग ये सेल से बना एपेंडाइमल सेल्स. और कहाँ से CSF रिलीज होता है? इट इज सिक्रेटेड बाय द वेंट्रिकल्स. जो कैविटीज है ब्रेन्स में उसमें ये CSF उससे रिलीज होता है. द 3 ओपनिंग्स इन द रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा. ये मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट ऑफ द ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये पढ़ेंगे हम आगे. हेल्प इन ड्रेनिंग आउट द CSF फ्रॉम ब्रेन टू द आउटसाइड. CSF जो ब्रेन में है उसको बाहर ड्रेन करने के लिए ये मदद करेगा. Functions. Meninges and CSF acts as shock absorber and protect the brain and spinal cord from mechanical injuries. जैसे कि हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड है, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड है, अलग अलग फ्लूइड हर एक डेलिकेट ऑर्गन्स में सराउंडिंग है. तो ये CSF का क्या फंक्शन है? एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर. जैसे हार्ट का जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये भी शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है. फिर लंग्स के ऊपर जो प्लूरल फ्लूइड है वो भी शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है. वैसे ये CSF भी शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है. प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज. It also maintains constant pressure inside the cranium. It helps in exchange of nutrients and waste between blood and brain tissue. It helps to supply oxygen to the brain. जो हार्ट में जो फ्लूइड है ये भी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हार्ट को. फिर लंग्स को भी वो फ्लूइड लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. ये सब फंक्शंस एक जैसे हैं. शॉक एब्जॉर्बिंग तीनों में भी रहेगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये तीनों ऑर्गन्स में रहेगा. ऑक्सीजन सप्लाई भी. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन यानी ड्राई होने से बचाता है. CSF is slightly alkaline fluid with a specific gravity 1.005. टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 to 120 cc. क्रेनियल कैपेसिटी जो है उसकी ये 100 to 120 है. इट इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाता है और सेंट्रल कैनल में. ब्रेन्स के हम दूसरे फोटोग्राफ्स देखेंगे. स्टडी ऑफ all aspects of the brain is called encephalology. Brain can be divided into 3 parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is again divided into telencephalon and diencephalon. Telencephalon is again divided into cerebral cortex, limbic system, and basal ganglia. Diencephalon is divided into hypothalamus and thalamus. With the help of diagram, it will be clear. Telencephalon, outermost part of the brain, cerebral cortex. Next to the cerebral cortex is limbic system and then basal ganglia. Below the telencephalon is diencephalon, divided into hypothalamus and thalamus. Midbrain
called as mesencephalon. Cephalon means brain. Yes, it is divided into, midbrain is divided into mesencephalon, crura cerebri, and corpora quadrigemina. Hindbrain is divided into two parts, metencephalon. This is mesencephalon and this is metencephalon. Myelencephalon. Metencephalon is divided into cerebellum and pons, while myelencephalon is divided into medulla oblongata. See the ventricles enclosed in each. In forebrain, lateral ventricle and third ventricle is present. 4 ventricles are present. First and second ventricles, they are present in forebrain. Subdivision into telencephalon. Present in cerebral cortex, basal ganglia, limbic system. Third ventricle is present in diencephalon, thalamus and hypothalamus. Midbrain, cerebral aqueduct, mesencephalon. In midbrain, ventricle present, name of the ventricle, that is the cavity, it is called as cerebral aqueduct. Divided into crura cerebri, corpora quadrigemina. Hindbrain consists of fourth ventricle, present in metencephalon and myelencephalon, divided into cerebellum, pons, veruli, and medulla oblongata. With the help of this diagram, again, you will be able to see the different ventricles. This is the telencephalon. In this, first and second ventricles are present. Then next to telencephalon is diencephalon. This is duct of aqueous. Here you can see the duct. Duct यानी ये passage रहता है. Third ventricle mesencephalon में और fourth ventricle जो है ये ventricle present है hindbrain. See the outermost part. Largest part of the brain, it is cerebrum. It is the part of the forebrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain का part कौन सा है? Cerebrum. ये जो दिख रहा है ये cerebrum. उसके नीचे है hypothalamus. ये hypothalamus है और thalamus. फिर cerebral hemisphere उसका ही पार्ट है cerebrum का. Corpus callosum ये midbrain का और forebrain का जो ending और midbrain का starting है. It divides the brain into, अगर हम dorsal view देखेंगे तो cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere और left cerebral hemisphere के बीच में ये corpus callosum रहेगा. Midbrain, यहाँ पे midbrain है. पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी यहाँ पे. ये ब्रेन स्टेम है. मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को ब्रेन स्टेम बोलते हैं. हाइंड ब्रेन इज क्लासिफाइड इनटू ये स्मॉलर ब्रेन है. इट इज सेरेबेलम. दिस इज पॉन्स वेरुलाई एंड दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा. और नीचे स्पाइनल कॉर्ड. Prosencephalon divided into telencephalon and diencephalon. Telencephalon again classified into olfactory lobes. You can see here olfactory lobes for sense of smell. यहाँ पे दिख रहा है ये olfactory lobe.
ये फोर ब्रेन के पार्ट्स है, सेरेब्रम, फिर थैलेमस, ये थैलेमस है, और उसके नीचे थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपो यानी बिलो, ये देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ये थैलेमस का पोर्शन है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। Diencephalon divided into epithalamus, thalamus and hypothalamus. Olfactory lobes, ये बल्ब है olfactory bulb, olfactory लाइनिंग जो होती है नोज की इधर, ये olfactory epithelium से कवर होती है। अभी हमने olfactory lobes देखे, देखो इधर है olfactory lobes। Highly reduced in human brain, covered by cerebrum, ये जो पार्ट है ये सेरेब्रम से कवर्ड है, फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट वेंट्रल साइड, वेंट्रल यानी नीचे की साइड से अनकवर्ड। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी पेडंकल एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब का है, दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, और उसको ही एक ऐसे स्टेम जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको थैलेमस बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। Largest part of the brain, cerebrum, 85% of the part of brain is covered by cerebrum. A deep median long fissure divides into right and left cerebral hemisphere. अगर हम डॉर्सल व्यू से सेरेब्रम देखेंगे, ऊपर से अगर देखेंगे तो इधर बीच में एक लॉन्जिट्यूडनल फिशर रहती है, ये लॉन्जिट्यूडनल फिशर, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन के दो डिवीजन होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल फिशर। अभी ये बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बैंड्स है जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। फाइबर्स, नर्व फाइबर्स connect the two hemispheres. कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी ये तो आपके सिलेबस में नहीं, स्प्लीनम, ये जो लास्ट पार्ट है इसको स्प्लीनम बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और ये जेन्यू, और यहाँ पे रोस्ट्रम। सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखो, आउटर थिन ग्रे मैटर, कभी भी कॉर्टेक्स वर्ड आ गया तो याद रखना है हमको, क्योंकि यही टर्म्स आपको किडनी जब पढ़ेंगे आप तभी भी रिनल कॉर्टेक्स आएगा, रिनल मेड्यूला, ऐसे टर्म्स आएंगे। फिर एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ेंगे तभी ये कॉर्टेक्स मेड्यूला, ओवरी पढ़ेंगे तभी भी ये टर्म्स आएंगे।
किडनी, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब का आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये याद रखेंगे तो अच्छा है। किडनी को रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। ब्रेन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। आउटर थिन ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से बना है, दो रहते हैं, एक व्हाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर क्यों बोला है? क्योंकि इसमें साइटोन्स है। ये जो साइटोन है इसमें लाए होते हैं, इसलिए ग्रे मैटर इसको टर्म यूज करते हैं। फिर जो एक्सन्स है उसके ऊपर ये माइलिन शीथ है, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स है। और फिर जो अंदर का कलर रहता है उसे व्हाइट कलर आता है, इसलिए उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या है? ये साइटोन है, सेल बॉडीज है न्यूरॉन के। तो ग्रे मैटर है, बिलियंस ऑफ साइटोन्स एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स एंड डेंड्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। सेरेब्रल मेडुला में इनर डीप व्हाइट मैटर, एक्सॉन्स विथ माइलिनेटेड फाइबर्स। याद रखना है व्हाइट मैटर क्यों है? क्योंकि उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। और यहाँ पे ग्रे मैटर है क्योंकि इसमें साइटोन है। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है, मेडुला में व्हाइट मैटर। Cerebral hemisphere greatly folded into many convolutions और gyra। ये डिप्रेशंस रहते हैं ब्रेन में, बहुत सारे डिप्रेशंस रहेंगे, होल्डिंग्स होते, तो उसको गायरा बोलते। और जो थोड़ा एलिवेटेड पार्ट रहता है गायरा एंड ब्रूज कॉल्ड एज सल्सा, ग्रेटली इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया ऑफ नर्व सेल्स। इसकी वजह से क्या होता है? जितने ज्यादा ये फोल्डिंग्स रहेंगे उतने ज्यादा नर्व सेल्स रहते। तो आपको पता है कि आपने सुना होगा कि ब्रेन के ऊपर जितने ज्यादा फोल्ड्स रहेंगे, जितने ज्यादा रिंकल्स रहेंगे उतना वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट रहता है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ नर्व ज्यादा रहते हैं। More number of nerves are present in greatly increased surface area. It increases the surface area. ये देखो, अगर ऐसे सेक्शन लिया तो ये ग्रे मैटर आपको दिख रहा है बाहर की तरफ से, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है। इसमें साइटोन्स है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, अंदर मेड्यूला है। ये मेड्यूला का कलर व्हाइट दिख रहा है क्योंकि इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। इधर लॉन्जिट्यूडनल फिशर है, इसलिए ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ये साइड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों साइड की तरफ से रहे। और यहाँ पे आपको दिख रहे गायरे, सल्साई एंड गायरे। सल्साई आर द डिप्रेशंस, गायरे आर द एलिवेटेड पार्ट्स। ये सेंट्रल सल्कस है, ये डिप्रेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। तो ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए, फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ये पैराइटल लोब है, इसके बीच में पैराइटो ऑसिपिटल सल्सा है। इधर भी एक डिप्रेशन है, इसका नाम क्या है? पैराइटो ऑसिपिटल सल्सा। ये पैराइटल लोब है, उसके ही नीचे ऑसिपिटल लोब। और यहाँ पे टेम्परल लोब है, कान के ऊपर का जो ब्रेन का लोब रहता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परल लोब। याद रखना है हमको। तो ईयर के ऊपर का जो सरफेस है उसको बोलेंगे टेम्परल लोब। फोरहेड के उधर का जो लोब है ब्रेन का वो फ्रंटल लोब है। उसके पीछे
पैराइटल लोब है और नेक के ऊपर थोड़ा सा उधर ऑसिपिटल लोब है। तो ये अलग अलग लोब्स है ब्रेन के। ये गायरस है, इधर सल्सा है, ये गायरस है। ऊपर का सरफेस ग्रे है कॉर्टेक्स और नीचे व्हाइट मैटर है। ये देखो ये सल्कस नीचे आ गए। थ्री डीप सल्सा है। सेंट्रल sulcus divides the brain into frontal lobe and parietal lobe। देखो ये सेंट्रल सल्कस है, इसकी वजह से ब्रेन के फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब में डिवीजन हो गया। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस की वजह से क्या हो गया, अगेन ब्रेन के पार्ट हो गए पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब। एंड लैटरल और सिल्वियन सल्कस, लैटरल और सिल्वियन सल्कस यानी ये जो है इसको क्या बोलेंगे, लैटरल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस है, ये पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है और यहाँ पे लैटरल सल्कस है। इसकी वजह से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ये टेम्पोरल लोब और ये ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल एकदम नीचे नेक रीजन के उधर, हेड और नेक के बीच में ऑसिपिटल। कान के ऊपर का जो लोब है ये टेम्पोरल है, फोरहेड के ऊपर का फ्रंटल, उसके पीछे का पैराइटल। ये cerebral hemisphere is divided into different lobes। इसमें भी ये डायग्राम में से भी क्लियर हो रहा है। देखो सब सल्कस है, सेंट्रल, पैराइटो ऑसिपिटल, लैटरल, लैटरल साइड पे रहे, सेंट्रल बीच में रहे, ऑसिपिटल और पैराइटल के बीच में पैराइटो ऑसिपिटल। फ्रंटल लोब का फंक्शन देखो, सेंटर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनैलिटी। फ्रंटल लोब, it is the center for expression of emotions, intelligence, will power, memory, personality। मोटर एरिया यानी जो वॉलंटरी एक्टिविटीज रहते, रनिंग, वॉकिंग वगैरह, ये सब मोटर एरिया ये कंट्रोल करेगा फ्रंटल लोब। कंट्रोल्स वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज और मूवमेंट्स ऑफ मसल्स। प्रीमोटर एरिया सेंटर फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम देखने वाले हैं। तो ये 3F भी बोलते हैं इसको। 3F यानी क्या, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। उस टाइम जो हमारे एक्शंस होते हैं ये कंट्रोल होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर। एसोसिएशन एरिया, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट्स। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब्स। मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में कोऑर्डिनेशन होता है। किसमें कोऑर्डिनेशन होता है, सेंसेशन एंड मूवमेंट्स में। पैराइटल लोब, इट इज सोमोएस्थेटिक सेंसेशन ऑफ पेन। पैराइटल लोब हमने डायग्राम में देखा है अभी। सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट। टेस्ट है तो गस्टेटो रिसेप्टर बोलते हैं, उसको याद रखना। गस्टेटो रिसेप्टर फॉर टेस्ट, जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट बर्ड
हमको अलग अलग टेस्ट बताते। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड में ये गस्टेटो, टंग में है ये गस्टेटो रिसेप्टर। टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसका भी जो इम्पल्स हमें मिलता है ये स्टिम्युलस, तो ये क्यों? पैराइटल लोब की वजह से। प्रेशर में भी अगर चेंजेस आ गए तो ये पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब सेंटर फॉर स्मेल, इट इज ऑल्फैक्शन, हियरिंग, ऑडिटरी, स्पीच एंड इमोशंस। जो टंग की मूवमेंट होती है, जॉस की मूवमेंट होती है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? टेम्पोरल लोब। एंड ऑक्सीपिटल लोब सेंटर फॉर सेंस ऑफ विजन, visual area, it is controlled by occipital lobe. ब्रोकाज एरिया है फ्रंटल लोब में, रिंकीज एरिया है टेम्पोरल लोब में। ब्रोकाज एरिया मोटर स्पीच एरिया, it is present in frontal lobe, translates the thought into speech। थॉट्स को स्पीच में ट्रांसलेट करने के लिए कौन हेल्प करता है? ब्रोकाज एरिया। रिंकीज एरिया सेंसरी स्पीच एरिया और इंटेलिजेंस सेंटर, area of contact between temporal, parietal and occipital lobes, helps in understanding of spoken and written words। तो ये कंट्रोल करेगा रिंकीज एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। फ्रंटल लोब एब्स्ट्रैक्ट थॉट, फिर मेमोरी, मूड, मोटिवेशन, फोरसाइट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, सोशल जजमेंट, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, स्पीच प्रोडक्शन। फ्रंटल लोब ये, इसमें से थोड़े भी याद रखेंगे आप तो अपने आप बाकी के याद आएंगे। डिसीजन मेकिंग है, फोरसाइट एंड प्लानिंग, सोशल जजमेंट, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, ये फ्रंटल लोब करेगा। parietal lobe taste, somatic sensation, sensory integration, visual processing, language processing, numerical awareness। occipital ये जो है इधर का occipital, visual awareness, visual processing। temporal lobe hearing, smell, emotion, learning, language comprehension, ये सब कंट्रोल करेगा। इंसुला, ये देखो इधर जो पार्ट है इंसुला, अंदर है लैटरल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बाजू में है ये। टेस्ट, पेन, विसरल सेंसेशन, कॉन्शियसनेस, इमोशन एंड एम्पैथी, कार्डियोवैस्कुलर, होम्योस्टैटिस। यानी हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बैलेंस रखने के लिए कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टैटिस मेंटेन करें। motor function, motivation, aggression, smell and mood, frontal lobe. Parietal, reception and evaluation of sensory information. Temporal, smell, hearing, memory and abstract thought. Occipital, visual processing. ग्रे मासेस में ये बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, present within the white matter or lying on the lateral side of thalamus. They receive neurotransmitter from various parts, help the cortex in execution of activities at the subconscious level. Writing slow or rapid typing.
corpus striatum at the floor of cerebrum is the largest basal nucleus. Corpus striatum सेरेब्रम के फ्लोर पे है ये कॉर्पस स्ट्रैटम, इसको स्ट्राइएशंस रहते हैं इसलिए नाम दिया है कॉर्पस स्ट्रैटम. इट हैज लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस. सेरेब्रल के फ्लोर पे यहाँ पे ये बेसल न्यूक्लिया आपको बेसल गैंग्लिया दिखने को मिल रही है. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है. इट फॉर्म्स अ कॉर्पस स्ट्रैटम और ये एमिग्डालॉइड बॉडी है, एमिग्डाला बोलते हैं इसको. ये भी हम देखने वाले नेक्स्ट इसमें फंक्शन देखने वाले हम. Diencephalon divided into epithalamus, thalamus and hypothalamus. थैलेमस के ऊपर का पार्ट इपी, थैलेमस के नीचे का पार्ट हाइपो. हाइपो यानी बिलो, इपी यानी अबव, याद रखना है आपको. लाइज बिलो द कॉर्पस कैलोजम एंड अबव द मिड ब्रेन. इनक्लोज ए सिंगल कैविटी कॉल्ड एज डायोसिल. इसमें सिर्फ थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है.